Hello students, today will we discuss about closest drama। आज हम closest drama के बारे में बात करेंगे। As it is obvious from the name, a closest drama is one that is not performed on the stage. It is enjoyed only by reading it. These dramas are meant to read only in a lonely room or in the peaceful atmosphere of a drawing room. That is the reason why they are called closest dramas. One of the weakness or peculiarity of these plays is that they impart great philosophical ideas to readers. Besides, they are extremely poetic and allegorical, and they are beyond the reach of ordinary readers. They are written in difficult language. Besides, they are extremely poetic and allegorical, and they are beyond the reach ordinary readers. Hence, the managers of the theatres face a number of difficulties in presenting or staging them. On the other side, the audience also fail to enjoy these plays. They are fiasco in the theatre. The theatre managers also refuse to accept them. It is impossible for actors to deliver long speeches, and people do not take any interest in them. In short, they are less plays and more poetry because of all these difficulties. The play impossible to be staged are left only to be read are enjoyed, and they have been rightly called closest drama। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्लोजेस्ट ड्रामा उस नाटक को कहते हैं जिसको मंच पर करके नहीं दिखाया जाता। इसका आनंद केवल पढ़कर ही लिया जाता है। ये नाटक केवल एकांत कक्ष या रूम के शांत वातावरण में पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं। यही कारण है इनको क्लोजेस्ट ड्रामा कहा जाता है। इन नाटकों की एक कमजोरी या विशेषता यह है कि इन पाठकों को महान दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये अत्यधिक काव्य में एलेग्रिकल होते हैं और वे साधारण पाठक की समझ से परे होते हैं। ये कठिन भाषा में लिखे जाते हैं और साधारण नाटक देखने वाले को समझ में नहीं आते। अतः थिएटर्स के प्रबंधकों को उनके मंच पर प्रस्तुत करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर श्रोता भी इन नाटकों का आनंद नहीं ले पाते और वे रंगमंच पर पूर्णतया असफल हो जाते हैं। थिएटर प्रबंधक भी उनको स्वीकार करने से मना कर देते हैं। कलाकारों के लिए लंबे भाषणों को पढ़ना असंभव था और लोगों को भी इनमें कोई आनंद नहीं आता था। संक्षेप में ये कविता अधिक तथा नाटक कम थे। इन सभी कठिनाइयों के कारण ऐसे नाटक जिनका मंचन नहीं किया जा सकता था उनको पढ़कर आनंद लेने के लिए छोड़ दिया गया और उनको क्लोजेस्ट ड्रामा ही कहा गया है। In English literature, the term closest drama came in quite recently, and it is generally applied to the works of the Romantic and the Victorian poets. They started their career as dramatists, but they were basically poets and did not gain much success as dramatists. They lacked talents essential for dramatists. They had little knowledge of the stage and audience. They wrote plays in the form of long poems. Consequently, they were sure to be a failure on the stage. Shelley is one of the important playwrights of the Romantic period. His play Cannes, written in blank verse, is a tragedy. It is a very famous. It is a picture of dramatic affairs full of pitiable and horrible incidents. It is a picture of dramatic affairs from the viewpoint of language, subject matter, and pathos. This play secures for Shelley a high place among the great English dramatists, and play reveals his dramatic qualities. What Grierson is of the view that this play of Shelley could not be a great tragedy because in it Shelley failed to employ great dramatic things. Tragedy because in it Shelley failed to employ great dramatic things to devices. Shelley's another important play is Prometheus Unbound. It is a great play comprised of 4 facts. It is a beautiful play written in pure poetry. In it, the poet sings song
beauty of nature and glory of love. The play also reveals the poet's excessive love of freedom, but it definitely lacks action. It has many illusions and allegorical things. Hence, it is very difficult to know its real meaning without going into the depth of the whole story. In this play, Shelley appears to be influenced by the French Revolution, and he expresses his firm determination to abolish vices from the surface of the earth. Hellas, published in 1822, is a lyrical play. In it, the poet has imitated the style of Achilles. It lacks the action, but it abounds in lyrics and songs, but can detect lack of action in it very easily. That is why all these plays are considered closest ड्रामा. साहित्य में क्लोजेस्ट ड्रामा निकट अतीत में ही प्रयुक्त हुआ. ये सामान्य रूप से रोमांटिक तथा विक्टोरियन कवियों की रचनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है. इन कवियों ने अपना कैरियर नाटककार के रूप में आरंभ किया, परंतु वे आरंभिक रूप में कवि थे और नाटककार के रूप में उनको अधिक सफलता एवं लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई थी. उनमें नाटककार के आवश्यक गुणों की कमी थी. उन्हें मंच तथा श्रोताओं का कोई ज्ञान नहीं था. वे नाटकों को लंबी कविता के रूप में लिखते थे. परिणाम स्वरूप मंच पर उनकी असफलता निश्चित थी. शैली रोमांटिक युग के महत्वपूर्ण नाटककारों में से एक था. उसका नाटक कैंसी एक ट्रेजेडी है. वह ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है. ये नाटकीय मामलों के दयनीय भयानक दृश्यों से पूर्ण चित्र है. भाषा विषय सामग्री करुणा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. इस नाटक ने शैली का स्थान बाहर नाटककारों के मध्य सुरक्षित कर दिया और नाटक उसके नाटकीय गुणों को प्रकट करता है. परंतु ग्रेडसन का विचार है शैली का ये नाटक महान ट्रेजेडी नहीं हो सका क्योंकि शैली इसमें महान नाटकीय चीज़ें युक्तियाँ प्रयोग नहीं कर सका. प्रोमेथियस अनबाउंड शैली का एक अन्य महत्वपूर्ण नाटक था. ये 4 अंकों का महान नाटक एक सुंदर शुद्ध कविता में लिखा गया. इस नाटक में शैली प्राकृतिक सुंदरता प्रेम के बेहू के गीत गाता है. नाटक कवि का स्वतंत्रता के प्रति अधिक प्रेम भी प्रकट करता है, परंतु इसमें निश्चित रूप से एक्शन की कमी है. इसमें बहुत से प्रसंग तथा एलेगोरिकल वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है. इसके वास्तविक अर्थ को बिना गहराई में जाए बिना कठिन है. इस नाटक में शैली फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित लगता है. वह संसार से बुराइयों को मिटाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करता है. हेलास एक काव्य में नाटक है. इसका प्रकाशन 1822 में हुआ था. इसमें शैली ने एक्लिस की शैली का अनुकरण किया. इसमें भी एक्शन की कमी है, परंतु इसमें कविता तथा गीतों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है. परंतु कोई भी इसमें एक्शन की कमी को सरलता से देख सकता है. इसी कारण शैली से सभी नाटक क्लोजेस्ट ड्रामा कहलाते हैं. वर्ड्सवर्थ लेकर स्विनबर्न तक सभी महान कवियों ने नाटक लिखे. बहुत से काव्य में नाटक लिखे, परंतु वे मंच पर सफल नहीं हुए. उनको क्लोजेस्ट ड्रामा की श्रेणी में रखा जाता है. नाटककारों के लिए अनियंत्रित श्रोताओं को प्रश्न एवं संतुष्ट करना सरल कार्य नहीं था. कलाकार भी साधारण लोगों के समाज से संबंधित नहीं थे. रंगमंच निम्न लोगों को निम्न स्तर का मनोरंजन उपलब्ध करा के उनकी रुचि की पूर्ति करता था. समाज के सभी वर्गों के लोगों ने थिएटर जाना आरंभ कर दिया तथा कलात्मक परंपराओं का उल्लंघन किया जा रहा था तथा उनको नष्ट किया जा रहा था. लगभग साहित्य से जुड़े सभी विद्वान साहित्य के दूसरे रूप या प्रकार की ओर ध्यान देने लगे. लगभग सभी कवियों ने नए नाटक में अपना कुछ न कुछ योगदान दिया, परंतु उनके सभी आविष्कार में सुधार निरस्त कर दिए गए. ऐसे बहुत से नाटक लिखे गए जिनका मंचन नहीं किया गया. इसमें नाटक का पतन हुआ है क्योंकि निम्न रुचि के कारण लोग अच्छे तथा कलात्मक नाटक पसंद नहीं करते थे. अधिकतर ऐसे नाटक का जिनका मंचन नहीं किया गया काव्य तथा व्यक्त किए गए विचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, परंतु नाटककार नाटक में एक्शन की अधिक चिंता नहीं करते थे. Swinburne is the only Victorian playwright that wrote many plays. After this period, there were written and developed realistic and social plays, and the poetic plays along with the closest drama vanished. In the modern age, the theatre management is completely scientific. Hence, all types of play can be performed. The audience has also become wise with the spread of education. Now there are no such plays can not be staged. Consequently, there is nothing like the closest drama. स्विनबर्न विक्टोरियन युग के एकमात्र कवि हैं जिनने कई नाटक लिखे. इस युग के बाद रियलिस्टिक तथा सामाजिक नाटक लिखे और विकसित हुए और काव्य में नाटकों के साथ क्लोजेस्ट ड्रामा भी लुप्त हो गया. आधुनिक युग में थिएटर मैनेजमेंट पूर्णतया वैज्ञानिक है. सभी प्रकार के नाटकों का मंचन किया जा सकता है. शिक्षा के प्रसार के साथ श्रोता भी बुद्धिमान हो गए हैं. मंचन के लिए क्लोजेस्ट ड्रामा जैसा कोई नाटक नहीं है जिसका मंचन ना किया जा सके.
परिणामस्वरूप क्लोजेस्ट ड्रामा जैसा कोई नाटक नहीं है। The closest drama was generally written by the Romantic and the Victorian poets. They were poet dramatists. They started their career as dramatists. But when they could not achieve success and popularity, they turned to poetry. The play called The Closest Drama is one that cannot be staged or acted. It is a play meant to be read and enjoyed in a lonely drawing room. They cannot be enjoyed by watching them being staged. The play written by Shelley, Wordsworth, Tennyson, Browning, Swinburne, and many other poets are brought out fine plays, but they were either in the form of long speeches or in the form of long poems which could not be acted. They were important from the viewpoint of language and the thoughts expressed in them. What they lacked in action, hence there were unsuccessful besides the poet dramatists of these ages and little knowledge of the stage and theatre going public of the age was unable to understand them. They were a failure. टेनिसन की भांति ब्राउनिंग ने नाटकीय क्षमताएं उच्च स्तर पर मौजूद थीं। यद्यपि उसको मंच तथा श्रोताओं की रुचि का अधिक ज्ञान नहीं था, तो एक नाटककार के रूप में वह पूर्णतया असफल था। फिर भी उसकी नाटकीय निपुणता में संदेह नहीं किया जा सकता। उसके प्रसिद्ध नाटक हैं स्टैफोर्ड एंड रिटर्न ऑफ द ड्रग्स और सोल्स ट्रेजेडी। सभी महान आलोचक ब्राउनिंग की ये कहकर प्रशंसा करते हैं कि उसको कुछ नाटकीय तत्वों का महान ज्ञान था और उसने नाटक के क्षेत्र में शानदार कार्य किया था। उसने रोमांचित करने वाले नाटकीय रोमांच भी लिखे, परंतु ये कहते हुए भी किसी का कोई झिझक नहीं होती कि नाटककार के रूप में वह असफल था। उसके अलग अलग दृश्य हैं, वह मुख्य रूप से उसमें करैक्टर का भी अध्ययन है।